Welcome to all my learners from Vibrant Gurus. Chapter number 3, Designing Simple Website Using Composer. Students, in first and second chapter we have learned how to create HTML form, cascading style sheet and how to add form validation rules using JavaScript. Now in chapter 3 we will learn how to create simple website using Composer. This website has home page, category page and billing page. Students, marks weightage for theory is 8 marks and practical is 10 marks from this chapter. So let's start. First, what is website? A website is a collection of interlinked web pages for specific purpose. The website should be designed in such a way the user find the website informative and visit repeatedly. यानी कि हम जो वेबसाइट बनाते हैं उसमें इंफॉर्मेशन इस तरह से होने चाहिए कि यूजर्स को हमारा वेबसाइट देखने में इंटरेस्ट हो, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो है वो बैलेंस्ड होने चाहिए, उसमें इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियोज और सारे लिंक्स जो है वो भी अच्छे से डिफाइन किए हुए होने चाहिए. सेकेंड, प्लानिंग फॉर द वेबसाइट. Students, developing a good website is project similar to any other project and require better planning. Good planning can achieve desired goals by developing the website. यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं, जैसे पहले उसका ऑन पेपर पूरा प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए क्या हमें ज़रूरत होगी वो सब डिफाइन करते हैं, उसी तरह वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए भी हमें ऑन पेपर पूरा प्रिपरेशन पहले करना पड़ेगा. कितने वेब पेजेस होंगे, होम पेज क्या होगा, किस तरह से लिंक होगा, ये सब हमें पहले से डिफाइन करना पड़ता है. So following are the points which should be considered for developing a good website. First is purpose. Before creating website, we should be clear with the definition and goal of the website. यानी हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये वेबसाइट हम किस लिए बना रहे हैं और कौन सा गोल हमें अचीव करना है. The purpose for creating the website may be to provide information to group of people, or it may be attract new customers, or it may be sell products online. हम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, कोई ग्रुप ऑफ पीपल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन सेल करे. सेकेंड, ऑडियंस. बिफोर वी स्टार्ट द डिजाइनिंग पार्ट, we should know the expected users of the website. The proportion of different types and extent of detailed and specific information depends on the nature of the expected audience. जो हमारा ऑडियंस है हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से लोग हमारे वेबसाइट को विजिट करेंगे, और उनको ध्यान में रख के हमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वो डिटेल में प्रोवाइड करना पड़ेगा. The user's expectation from the website are important to know as it helps to develop the appropriate content and layout of the website. ये information हमें website develop करने में help करती है. Third is content. The website must contain complete and relevant information. Excessive use of irrelevant information can cause frustration to the user as they are unable to seek the specific data. यानी कि जो भी हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो रिलेवेंट होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा ऐसा इंफॉर्मेशन हम जो डालेंगे कि जो हमारे टॉपिक से इरेलेवेंट है, ऐसा इंफॉर्मेशन अगर होगा तो यूज़र को जो स्पेसिफिक डेटा चाहिए वो उसको मिलेगा नहीं और वो फिर वेबसाइट विजिट नहीं करेगा. तो कंटेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज इनकम्प्लीट. इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज इनकम्प्लीट, द यूजर कैन लीव द वेबसाइट. द कंटेंट शुड बी क्लासिफाइड इनटू जनरल एंड डिटेल्ड कैटेगरीज. द जनरल कंटेंट, it provides an overview of the site, organization,
प्रोडक्ट, सर्विस एंड अदर आइटम्स। ये जनरल इंफॉर्मेशन होता है कि आपका वेबसाइट का ओवरव्यू देगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपके प्रोडक्ट्स क्या है, वगैरह वगैरह। एंड द डिटेल कंटेंट्स प्रोवाइड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द साइट लाइक प्रोडक्ट्स, services description, etc. If there is a lot of content to be displayed on a web page, then try to split it into small text boxes, text blocks. This way visitor will be easily able to pick the information. यानी कि जो अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्प्ले कीजिए, तो अगर यूज़र को जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो पर्टिकुलरली वो उसको सर्च कर पाएगा। The navigation in the website should be made as easy as possible. यानी कि होम पेज में आपके सारे पेजेस के लिंक्स इस तरह से देने चाहिए कि यूजर उसको इजीली पिक कर सके कि उसे कौन सा पेज, कौन सा लिंक उसको ओपन करना है। Ensuring the appropriate content, both general and detailed, is available, easily accessible, ensure the website can serve its intended purpose. A website is a valuable tool for businesses and the organizations when composed of right content. यानी कि अगर आपका वेबसाइट जो है वो इस तरह से कंपोज किया गया होगा कि उसमें जो सारे कंटेंट्स है वो अच्छे से यूज़ किए हैं, सिस्टमेटिक वे में उसको डिस्प्ले किए हैं, लिंक्स अच्छे से डिफाइन किए हैं, तो वो बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यूएबल बिजनेस टूल के रूप में हेल्प करता है, राइट। ओके, फोर्थ इज मीडियम। द वेबसाइट डिजाइन शुड स्केल फॉर ऑल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका वेबसाइट जो है वो यूज़र्स और कस्टमर्स कोई भी डिवाइस पे देख सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, स्मार्टफोन्स है एंड टैबलेट्स है, राइट। और आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो वो इस तरह से बनाना चाहिए कि वो सारे पॉपुलर वेब ब्राउजर्स जो है उसके लिए कंपैटिबल हो, राइट। जैसे मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा। सो क्रिएटिंग अ सिंपल वेबसाइट। Now we learn how to design and develop a small e-commerce website in Composer. Our websites, according to our example, in our website's name is School Plaza and all the school related items are available. We will also create a shopping cart which will show us all products and total amount of the items that we have purchased. First we create home page. What is home page? Home page of the website is the first page that opens when user enter the URL of the website. आप कोई भी सर्च इंजिन में जाके सबसे पहले जब आप वेबसाइट का नाम डालते हो तो जो सबसे पहला पेज ओपन होता है वो होता है आपका होम पेज। द होम पेज शुड लिस्ट ऑल कैटेगरीज ऑफ द आइटम्स अवेलेबल, यानी जो भी आपके कैटेगरीज है, आपके आइटम्स है, उनका लिस्ट और उनके पिक्चर्स वो सब वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। और ये डिफरेंट कैटेगरीज है उस पर क्लिक करके यूज़र जो है वो इजीली दूसरे वेब पेज में जा सकता है और वहाँ पे पर्टिकुलर कैटेगरीज के आइटम्स जो है उसका लिस्ट भी होना चाहिए, जहाँ से वो क्लिक करके अपना आगे का प्रोसेस, परचेज का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकता है। सो स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट। सबसे पहले हमारे जितने भी कंटेंट्स है, चाहे वो इमेजेस है, टेक्स्ट है, वीडियोस है, उन सबको अरेंज करने के लिए हम सबसे पहले टेबल इंसर्ट करेंगे। सो वी विल अरेंज देम इन टेबल। सो फर्स्ट इंसर्ट टेबल विथ सिंगल सेल। एक ही सेल का टेबल इंसर्ट करेंगे। फॉर दैट गो टू इंसर्ट, सिलेक्ट टेबल एंड सिलेक्ट वन सेल एंड क्लिक ऑन ओके बटन। Okay, now save the web page. Save the web page with suitable page title. In our example, our page title is School Plaza.
which will displayed on the title bar of the web browser. Now save the file with file name index.html. Why index.html? Students, generally when we create the home page of the website, it is named as index.html. Some important facts are here. Every website built inside directories on a web server. Each web page is separate file on the web server. When user type the URL of the website in the browser, he or she does not need to specify the file name to be opened. But the web server needs a default file name in order to display the content. This default file is page named index.html. यानी जब भी यूजर कोई भी वेबसाइट ओपन करता है तो वो होम पेज का नाम या उसका फाइल नेम टाइप नहीं करता, वो टाइप करता है आपकी वेबसाइट का URL। और जब वो URL टाइप करता है तो वेब सर्वर आपकी जो वेबसाइट है उसका डिफॉल्ट फाइल जो है उसको सर्च करेगा और उसको डिस्प्ले करेगा। और ये जो डिफॉल्ट फाइल है वो कौन से नाम से सेव्ड है? index.html. So when we type URL of the website without file name, the server look for the default file and displays it automatically. So now यहाँ पे हमने फाइल सेव कर लिया है। Now give the background color to the inserted table. जो टेबल इंसर्ट किया है उसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे। फॉर दैट सिलेक्ट टेबल, डबल क्लिक ऑन इट और सिलेक्ट टेबल एंड राइट क्लिक ऑन इट and select table cell properties option. Okay, this will open table properties dialog box. In this dialog box there are two tabs, table and cell. इस तरह से यहाँ पे table and cells दो tabs है। Okay, now click on table tab. You can see different options like size में यहाँ पे rows and columns, हाइट एंड विड्थ दिया है जो आपके टेबल का साइज डिफाइन करते हैं। और ये साइज वी कैन हाइट एंड विड्थ वी कैन डिफाइन परसेंटेज ऑफ विंडो और पिक्सल्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है बॉर्डर्स एंड स्पेसिंग। इसमें तीन ऑप्शंस है, बॉर्डर, स्पेसिंग एंड पैडिंग। बॉर्डर डिफाइन करता है आपका टेबल का आउटलाइन। स्पेसिंग यानी टेबल के दो सेल के बीच में स्पेस डिफाइन करेगा। और पैडिंग सेल कंटेंट और सेल बॉर्डर के बीच में स्पेस डिफाइन करेगा। और ये सारे वैल्यूज जो है वो पिक्सल्स में होते हैं। उसके बाद होता है टेबल अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, यू कैन चेंज दिस इन सेंटर और राइट ऑल्सो। कैप्शन, टेबल को एक कैप्शन प्रोवाइड करता है। और इम्पोर्टेंट ऑप्शन बैकग्राउंड कलर, जिसे हम बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यूज करते हैं। ओके, नाउ टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, क्लिक ऑन बैकग्राउंड कलर एंड सिलेक्ट एप्रोप्रिएट कलर। आपको जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ टू डिस्प्ले नेम स्कूल प्लाजा एंड रिलेटेड इमेज, इंसर्ट टेबल विथ 1 row and 2 columns. फॉर दैट go to insert and select table option, select 1/2 table and give suitable background color to the table. Now इसमें से जो राइट सेल होगा उसमें हम इमेज इंसर्ट करेंगे। कैसे? To insert image, click on insert and select image option, or we can also click image icon of composition toolbar. This will open image properties dialog box. From here, we have to select one option, don't use alternate text, and specify the image location that you want to open. Now select dimension tab of this properties dialog box and click on custom size option. Here you can specify the image size as percentage of cell or in pixels. We define height and width 100 by 100, यानी कि हमें छोटा सा इमेज इंसर्ट करना है तो हमें सबसे पहले कस्टम साइज ऑप्शन पे क्लिक करके स्टूडेंट उसके बाजू में एक छोटा सा ऑप्शन होता है कंस्ट्रेंट, उसको अनचेक कर देना है और हाइट एंड विड्थ दोनों को 100 by 100 डिफाइन करना है। नाउ
Below this, we insert another table with 2 rows and 2 columns. Okay. In first row, type categories in the left cell and new products in right cell. And give color to the text by going to format text color. यानी कि text color हम change करेंगे, उसके लिए format में जाके text color option पे click करना है. Okay. In second row, just below the categories, insert table with single column with multiple rows. That is 6 rows and 1 column. In this table, insert different categories like school bag, uniform, water bottle, stationery, etc. These categories will be a link which takes us to related pages of the selected categories. यानी कि जब होम पेज पे हम इसमें से कोई भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, वो हमें उसके जो ऑप्शंस है कैटेगरीज के पेज पे हमें ले जाएगा. कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर बॉटल पे क्लिक करूंगी तो वाटर बॉटल्स के डिफरेंट ऑप्शंस वो हमें डिस्प्ले करेगा. नाउ create table with 3 rows and 3 columns to add the images of the items and details in the cell below the new products. In each column, insert image of item and name of item, price, add to cart checkbox, add to cart checkbox and क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स. ये सब हमें इमेज के नीचे इंसर्ट करना है ताकि जब भी यूजर देखे तो उसे पता चले कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, उसका नाम क्या है, उसका प्राइस क्या है, और अगर उसे चाहिए तो ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करेगा और कितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी वो इन्फॉर्म कर सकता है, मेंशन कर सकता है. वी कैन इंसर्ट चेक बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग फॉर्म फील्ड. फॉर्म फील्ड से हम चेक बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स इजीली इंसर्ट कर सकते हैं. Now next this table we will insert another table of 1 row and 4 columns for details like about school plaza, feedback, contact us, site map, etc. Okay students, after follow these steps your home page will be created. You can see its preview in next page. See, इस तरह से आपका होम पेज बनेगा और इसमें सारे डिटेल्स है, ये सारे कैटेगरीज है, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स का लिस्ट है, उसमें उसका नाम, उसका प्राइस, क्वांटिटी, ऐड टू कार्ट, सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है. और ये कैटेगरी पेज पे से आप कोई भी कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो वो आपको उसके कैटेगरी पेज पे ले जाएगा. नीचे यहाँ पे अबाउट स्कूल प्लाजा, फीडबैक, कॉन्टैक्ट, साइट मैप सब डिस्प्ले हो रहा है. और ये परचेज बटन है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो वो आपको ऐड टू कार्ट बटन यानी कि बिलिंग पेज पे आपको वो ले जाएगा. ओके, नाउ वी नीड टू क्रिएट कैटेगरी पेज. मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो वो हमें कैटेगरी पेज पे ले जाएगा. तो उसके लिए क्या हमें पूरा पेज फिर से डिजाइन करना है? नहीं. क्यों? क्योंकि जो हमारा कैटेगरी पेज है वो हमारे होम पेज जैसा ही दिखेगा. तो हम क्या करेंगे, हमारा जो होम पेज है उसका कॉपी क्रिएट करेंगे. तो टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ होम पेज, सिलेक्ट सेव एज ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेनू and save the file with name, related category like schoolbag.html, stationery.html, etc. Now in category page, change all the items according to your category. यानी कि जैसे ही हमने सेव एज किया तो हमें न्यू पेज मिल जाएगा. स्कूल बैग या जो भी कैटेगरी के लिए हमने बनाया है तो हमें अकॉर्डिंग टू आवर नेम हमें वो सारे इमेजेस भी उस तरह से चेंज कर देने हैं. Now on home page we will create link on different categories. So first open your index.html page in Composer, select text stationery, go to insert and select link option. Link properties dialog box will open. Under link location select stationery.html and press OK. stationery.html पेज हमने कॉपी करके आइटम्स चेंज करके बना दिया है. तो जब भी होम पेज पे स्टूडेंट स्टेशनरी ऑप्शन पे क्लिक करेगा
तो ये वाला पेज जो है वो ओपन होगा. Now follow the same steps and create link on each categories. Now at the bottom of the page, add purchase button. We can add this button with the help of submit button. Submit button पे जाके नेम एंड फील्ड वैल्यू जो है उसको चेंज करके हमें परचेज रख देना है. When user click on purchase button, bill.html page will open. To create link on purchase button, select purchase button, go to insert and click on link. On next page, you can see the preview of bill.html page. इस तरह से आपको एक बिल पेज बनाना है, बिलिंग पेज, जिसमें आपका वेबसाइट का नाम, उसका लोगो वगैरह वैसे ही रहेगा. यहाँ पे एक टेबल बनाना है जिसमें यूजर अपने प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, क्वांटिटी वगैरह डाल पाएगा. राइट, तो ये आपका बिलिंग पेज है. नाउ आफ्टर डिजाइनिंग द वेबसाइट, सेकेंड स्टेप इज पब्लिशिंग अ वेबसाइट. So to publish website means upload the website on server. From there user can access our website. अब जब भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं वेबसाइट, उसके बाद हमें वेबसाइट को पब्लिश करना पड़ता है और वो वेबसाइट जो है हमारा सर्वर पे पब्लिश हो जाएगा, हमारा वेबसाइट सर्वर पे अपलोड हो जाएगा एंड यूजर कैन एक्सेस आवर वेबसाइट. So to upload website we need account on server. सर्वर पे हमारा अकाउंट होना चाहिए. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP हमें लिमिटेड फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम हमारा वेबसाइट लोड कर सकते हैं. We can also buy a space from professional service providers. जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स है वो फीस लेके हमें स्पेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए कि जो फ्री सर्विस हमें प्रोवाइड होता है वेब होस्ट के द्वारा, वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है. वी कैन रजिस्टर ऑन दिस पेजेस एंड अवेल फ्री स्पेसेस, यानी कि वो पेज पे हमें रजिस्टर करना पड़ता है एंड वी कैन यूज फ्री स्पेसेस, बट वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही होता है. ओके, टू पब्लिश वेबसाइट, ओपन index.html पेज and go to file and click on publish option. Publish dialog box जो है वो ओपन होगा. उसमें ये सारे डिटेल्स जो है वो हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं. इन द साइट नेम फील्ड हमारा जो वेबसाइट है उसका नाम प्रोवाइड करना पड़ता है. हमें HTTP एड्रेस जो है होम पेज का वो प्रोवाइड करना पड़ता है. ये जो है ये एड्रेस हमें कैसे मिलता है? एक्चुअल वेब एड्रेस और URL ऑफ द वेबसाइट जो है वो होता है हमारा HTTP एड्रेस. पब्लिशिंग सर्वर डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय ISP, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो पब्लिशिंग सर्वर डिटेल्स हमें प्रोवाइड करता है. एंड वेब होस्ट या जो भी वेब होस्ट है वो हमें वो डिटेल प्रोवाइड करता है कि हमें कहाँ से स्पेस परचेज करना है, ये सारा डिटेल्स वही प्रोवाइड करता है. अगर आप FTP सर्वर के थ्रू कनेक्टेड हो तो आपको FTP एड्रेस प्रोवाइड करना है. FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. FTP इज द मीन्स बाय विच we can transfer the web pages from our computer to web host. फाइल ट्रांसफर है यानी कि वो हमारे वेब पेजेस के फाइल्स जो है वो वेब होस्ट पे ट्रांसफर करता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज अपलोडिंग और पब्लिशिंग. ये जो वेब पेजेस जो है वो वेब होस्ट पे ट्रांसफर करना यानी अपलोडिंग और पब्लिशिंग द वेबसाइट. नाउ क्लिक ऑन पब्लिश बटन. ओके, अदर ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट टूल्स, उसमें सबसे पहले नाम आता है Aptana Studio. It is a powerful open source IDE integrated development environment for building web applications. It is complete web development environment which provide language supports for HTML, CSS, JavaScript, Ruby, Rails, PHP, Python और many others. Okay, Aptana Studio 2.0.5
जो Aptana Studio 2 के नाम से भी जाना जाता है. It is currently used to develop the web applications using HTML, CSS and JavaScript. It can create projects in PHP, Rails, Ruby or web. Second is Blue Griffon. It is also open source Vishyag HTML editor. Student, Vishyag means what you see is what you get. वो सपोर्ट करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, डच, जर्मन, चाइनीज एंड मैनी मोर. थर्ड इज आमाया. इट इज ऑल्सो ओपन सोर्स विषयक वेब एडिटर डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम. यानी कि इसको W3C ने डेवलप किया है. ये भी विषयक एडिटर है. एंड इट इज इनिशियली स्टार्टेड एज एन HTML एंड CSS एडिटर and has now grown into a editor for many XML based system. So students, easy है ना एक simple website बनाना. Students, I have also uploaded practical videos and I have divided practicals in 2 sessions. In first, I have created home page, and in second part, other pages and links related to web pages. So to see the videos, subscribe our channel. Hope you have saved this session. So Ctrl+S till we meet next.